या तो लॉलीपॉप दे दो आप फ्री ऐ फलाना आखिरी 2 महीने पौने 5 साल ठोका ठोक इनू टा उनू सिट ए जुल्म ए हक खो ते आखिरी 2 महीने आ भी ले ला आ भी तो समान पट के थोड़ी जेब च सट मकसद सिर्फ सरकार बनाना है, सिर्फ सत्ता चाहना है, झूठ बोल के 500 वादे करके कि मकसद सिर्फ सत्ता चाहना या पंजाब के लोग यही ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 35% ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर बिजली की दरों को कम नहीं किया। वहां पर बिजली खूब महंगी मिल रही है, ताबड़तोड़ रेट पे मिल रही है, लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है बिजली की रेट के टैरिफ के चलते लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। लेकिन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में फरवरी के महीने में इलेक्शन या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, तो मात्र कुछ ही महीनों के लिए एक चुनावी स्टंट, एक चुनावी जुमला चन्नी साहब ने छोड़ा है बिजली सस्ती करने का कि 2231 रुपए ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੜੀ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਤੇ 2231 ਕਰੋੜ ਤੇ 29 ਲੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਰਡ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक साफ नीयत का नेता बिजली फ्री करना जानता है और बिजली 24 घंटे 7 दिन करना जानता है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। हम करके दिखाएंगे पंजाब में आने वाले समय में। और ड्रामेबाज मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा कहना है कि काम करो, फोटो और वीडियो कम खिंचवाओ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ 200 ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹ 3791 ਬਣ ਗਏ। निकम्मेपन की सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने कांग्रेस नामक जहाज को बदलने का मन बना लिया है, वो जहाज जो डूबती टाइटैनिक बन चुका है, आइसबर्ग से भी टकरा चुका है, अब छोटे मोटे रिपेयर से ये नैया, ये शिप डूबने से आप नहीं बचा सकते। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵੀਕੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब के लोगों को लूट कर 4.5 साल, अब चुनावों से 2-3 महीने पहले लोगों को झूठे वादे करके और उनकी आंख में धूल झोंकने का काम ड्रामेबाज चन्नी साहब कर रहे हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਫਰੀ ਐ ਫਲਾਨਾ, ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਠੋਕਾ ਠੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਤਾਰੇ ਲਿਆਓ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 35% ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿ 2231 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੜੀ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਤੇ 2231 ਕਰੋੜ ਤੇ 29 ਲੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਰਡ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ 35% ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
कि चन्नी साहब जो कुछ सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ ने 800 यूनिट माफ करने का किया, हुण तुहाडे नਵੇਂ रेट के मुताबिक 3 रुपये घटा के असीं वो चार्ट दिखाने तुहानूं कि उहदे हिसाब दे नाल जे जिहड़ी अनाउंसमेंट असीं कीती है उहदे हिसाब दे नाल अज भी वो 800 यूनिट माफ जे ना होवे जिवें असीं करनी है तो 3791 रुपए अज के रेटां के हिसाब नाल भी लोगों को वध ले जाण। ये चार्ट है तुहाडे सामने, मैं पूरा कढ़ के दिखाया कि पहले 100 दे विच, क्योंकि अज चन्नी साहब ने कहा कि 1 रुपये 19 पैसे रेट लगना, मैं उन्हों का रेट लाया 200 यूनिट 4 रुपये 1 पैसे के हिसाब नाल नवा रेट लाया जो 3 रुपये घटा के 500 यूनिट नवे रेट के मुताबिक तो ये 3791 बनते। जे पुराने रेट लाइए तो 6191 रुपए की राहत है जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल की साडी पार्टी ने दोवां ने गठजोड़ ने असी पंजाब के लोगों वास्ते अनाउंस की है। तुसीं तां फ्राड करना सी, फ्राड तो पूरा कर देंगे। जे फ्राड ही कर लगे सी तो घट्टो घट्ट 19 छाल मार देंगे, पर असी तो साडा इतिहास है कि जो कुछ असी पहला कहते रहे सी वो हमेशा करते रहे हैं। पर एक बारी मैं तुहानूं वीडियो दोबारा तुहाडे प्रधान साहब की अज की जो तुसीं ड्रामा किया वो फिर दिखानी चाहुंदा कि इहदा किरपा करके मैनूं दसो कि इहदा तुहाडे कोले जवाब की है कि पार्टी जिहदी सरकार है ਉਹਦਾ प्रधान कह रहा है कि दसो लियाओगे कितों, हालत की है तुहाडी। वो मैं बेनती करदा कि जिहड़ा कोई अगे लफज तुसीं ध्यान दे नाल ना सुनिया होवे किरपा करके। ते हुण मुख मंत्री साहब दीयां लत्तां भार क्यों नहीं चल रही कि वो ये कह रहे हैं कि PPA दे जिहड़े आ वो असीं विधान सभा दे विच लैके जावांगे। जिहड़ी GVK जिहदा तुसीं लोकां 'च क्रैडिट लै रहे हो ये तुहाडा ही प्रैस रिलीज है मुख मंत्री साहब जिहड़ा तुसीं दित्ता कि असीं उहदे PPA रद्द कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर बिजली की दरों को कम नहीं किया। वहां पर बिजली खूब महंगी मिल रही है, ताबड़तोड़ रेट पे मिल रही है, लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है बिजली की रेट के टैरिफ के चलते लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। लेकिन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में फरवरी के महीने में इलेक्शन या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, तो मात्र कुछ ही महीनों के लिए एक चुनावी स्टंट, एक चुनावी जुमला चन्नी साहब ने छोड़ा है बिजली सस्ती करने का। मेरा दूसरा पॉइंट, चन्नी साहब द्वारा, ड्रामेबाज चन्नी साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट सिर्फ एक चुनावी स्टंट और जुमला है। और जो भी उन्होंने बिजली की दरों में कटौती दी है वो सिर्फ 31 मार्च 2022 तक के लिए है, यानी कि सिर्फ 5 महीनों के लिए चन्नी साहब ने ये बिजली की दरों में कटौती पंजाब की जनता को दी है कि 5 महीने उनको सस्ती बिजली देकर उनकी आंखों में धूल डालकर उनके वोट लेने की कोशिश करें। और 31 मार्च 2022 को ये चुनावी स्टंट पूरा हो जाएगा और ये बिजली की जो दरें में कटौती जो एक सब्सिडी देकर दी जा रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो मैं पंजाब की जनता को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें होशियार करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ड्रामेबाज चन्नी साहब के धोखे और उनके चुनावी स्टंट, चुनावी जुमलों से हमने बचना है। ये 31 मार्च 2022 तक सिर्फ चन्नी साहब 5 महीने के लिए सिर्फ बिजली की दरों में कटौती कर रहे हैं क्योंकि वो आपका वोट खरीदना चाहते हैं। वो आपकी आंखों में धूल डालकर 4.5 साल की अपनी भ्रष्ट, लूट और निकम्मी सरकार का जो दाग है वो मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं और 5 महीने के लिए सिर्फ आपको सस्ती बिजली देकर आपका वोट खरीदना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विजन में, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके मकसद में
बिजली सस्ता करना होता तो राजस्थान जहां सबसे महंगी बिजली मिलती है वहां पर भी बिजली सस्ती करते, क्योंकि वहां इलेक्शंस नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। अगर कांग्रेस के विजन में होता तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिजली सस्ती करते, जहां सबसे महंगी बिजली मिलती। पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। महाराष्ट्र जहां भी कांग्रेस की सरकार है, बहुत महंगी बिजली मिलती है महाराष्ट्र में, वहां पर बिजली की दरें सस्ती नहीं करी जा रही, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं आ रहे, वहां पर इलेक्शन नहीं है। लेकिन पंजाब जहां पर केजरीवाल साहब ने जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा नहीं, गारंटी लोगों को दे दी, वहां पर चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले चन्नी साहब ड्रामेबाज मुख्यमंत्री ये वादा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं कि 4.5 साल एक लूट और निकम्मेपन की सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने कांग्रेस नामक जहाज को बदलने का मन बना लिया है, वो जहाज जो डूबती टाइटैनिक बन चुका है, आइसबर्ग से भी टकरा चुका है, अब छोटे मोटे रिपेयर से ये नैया, ये शिप डूबने से आप नहीं बचा सकते चन्नी साहब। और मैं एक और चीज कह दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब ड्रामे करते हैं रोज, केवल कैमरे पे अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का उनको शौक है। रोज कई दर्जनों कैमरों के साथ वो कहीं पहुंच जाते हैं, बढ़िया सी अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं, अपनी पिक्चर बनवाते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। ये चीजें कर कर चुनाव नहीं लड़े जाते, ये चीजें कर कर चुनाव नहीं जीते जाते ड्रामेबाज चन्नी साहब। लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों की जिंदगी आसान करनी पड़ती है। आपने देखा कि आज से कुछ दिन पहले चन्नी साहब कहीं भांगड़ा डाल रहे थे, किसी दिन गोलकीपर की पोशाक पहन के हॉकी के मैदान में उतर जाते हैं, कहीं चलती गाड़ी रोककर 2 आदमियों से मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, उनको सगन पकड़ा देते हैं शादी ब्याह का। रोजाना हम देखते हैं कि इस प्रकार के ड्रामे चन्नी साहब कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब आप जिस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं उस सूबे में 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उस सूबे पे 3 लाख करोड़ का सूबे की सरकार पे कर्जा। भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आपके सूबे में। हमारे पंजाब सूबे के किसान पिछले 1 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सूबे पंजाब की कई जनरेशंस नशे ने बर्बाद कर दी। उस सूबे के मुख्यमंत्री को रोजाना भंगड़े डालना, फोटो खिंचवाना, फुटबॉल खेलना, गोलकीपर की पोशाक पहनकर अपनी फोटो खिंचवाना शोभा नहीं देता। ये ड्रामेबाजी करना बंद कीजिए। हमने बहुत देख लिया आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की ड्रामेबाजी पंजाब में। पंजाब के लोगों को काम चाहिए चन्नी साहब। इन ड्रामेबाजियों से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आपको लगता है कि 3 रुपए यूनिट बिजली सस्ती कर 5 महीने के लिए लोगों को ये रियायत देकर आप लोगों का वोट खरीद सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। सब जानते हैं कि 31 मार्च 2022 को आपकी ये बिजली दर की कटौती खत्म हो जाएगी। और मैं आज अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आपकी सरकार चल रही है वहां वहां पर बिजली सस्ती करो। अगर ये चुनावी स्टंट नहीं है, अगर ये इलेक्शन का जुमला नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हर उस स्टेट में जहां पर उनकी सरकार है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हर सरकार में कांग्रेस पार्टी हर उस सूबे में बिजली की दरें सस्ती करे या बिजली फ्री करे। अगर चुनाव आपका मकसद नहीं है, अगर लोगों का वोट खरीदना आपका मकसद नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना चुनाव से पहले आपका मकसद नहीं है। हमने देखा था पंजाब में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कैसे वोट लिए थे। पिछले चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन साहब ने जॉब कार्ड बांटे पंजाब के लोगों को और कहा घर घर नौकरी मैं दूंगा। कैप्टन ने सौं चुकी, घर घर नौकरी पक्की।
कसम खाते हैं कैप्टन साहब की हर आदमी को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। जिस आदमी के साथ फोटो खिंचवाई उस कैंपेन में, उस आदमी तक को नौकरी नहीं मिली, वो भी बेरोजगारी का शिकार है। ये बिजली का वादा ड्रामेबाज चन्नी साहब का कैप्टन साहब के नौकरी के वादे के जैसा है, रोजगार के वादे के जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं। बस इतना है कि चन्नी साहब का ये वादा 3-4 महीने तक आपको नजर आएगा और फिर 3-4 महीने के बाद ये हवा में उड़ जाएगा। मैं पंजाब के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हम इस 5 महीने के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। 5 महीने की बिजली की कटौती जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो सिर्फ हमारा वोट खरीदने के लिए है, जो सिर्फ 4.5 साल की लूट और निकम्मेपन के दाग को मिटाने के लिए है, हम उसमें नहीं फंसेंगे। और एक चीज आखिर में, अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी पंजाब के लोगों को थी कि केजरीवाल सरकार पंजाब में 24 घंटे 7 दिन बिजली देगी, 24/7 बिजली देगी, फ्री बिजली देगी 300 यूनिट तक, अनइंटरप्टेड सप्लाई बिजली का आएगा। और यह सिर्फ एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में करना जानता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में हमने करके दिखाया। आज पंजाब में 10 से 15 घंटे के कट, पावर कट हर जगह लगते हैं, दिल्ली में भी लगा करते थे। लेकिन दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, केजरीवाल साहब ने पूरी बिजली के विभाग को अपने हाथ में लिया और आज दिल्ली में 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है। कोई इन्वर्टर जनरेटर नहीं खरीदता आप दिल्ली में, बिजली सारा समय आती है और बिजली मुफ्त मिलती है दिल्ली वालों को। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक साफ नियत का नेता बिजली फ्री करना जानता है और बिजली 24 घंटे 7 दिन करना जानता है, तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। हम करके दिखाएंगे पंजाब में आने वाले समय में। और ड्रामेबाज मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा कहना है कि काम करो, फोटो और वीडियो कम खिंचवाओ।